Welcome to Borai News. IPS officer Anand Mishra visit Haflang. ये जगह पे काली एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? एल्टो और कोई एक बाइक था होगा। One of the most famous police officer of Assam, Anand Mishra, have visited Haflang exploring the district of Dima Hasao. IPS Mishra depart from Guwahati on Friday to Haflang and halt at police guest house in Haflang. The following day, along with members of Christian Enfield Riders, he ventures out to explore the town. He visits Jatinga village, ethnic village, Mulhoi and Gunjung. Later, Mishra attends a musical night at Mulhoi arranged by the Christian Enfield Riders. Huts and houses made for each ethnic community. Yeah, yes, sir. And so this is not like a village where everyone stays. It's not like that. No. Huh? It's not like a normal village. Yeah, yeah. It's But their language are a bit different. okay. The face is so realistic. Realistic they have, yeah. They still dress like this. Oh, sorry. No. Even today also. Where young boys can
young boys, they used to learn this art craft, and women and females are not allowed. So this is a kind of barrier. So females cannot step over it. Yeah, Difficult for them. Yeah. Obstacles. Okay. There's so much of logic everywhere. Yeah. There's a name written. Ethnic. No, there was a name written. Enrula. Len Ruler. Enrula. Jatinga. We call it Jatinga. Jatinga. And here, how many cottages are here? 14. 14. 14. So we have 14 cottages representing 14 ethnic communities in this area. And इसमें इनका जो घर का तरीका है, the cottage, the way they stay, and along with that, like a dummy human shape, कैसे दिखते हो, cultural attire, the looks, the attitude, the body language, तो ये सब है. So it's a good go around for people who come from outside to have a feel at least, so that when we go and see them on ground, then we can easily relate. And this, thanks brother, you told me this thing ना, ये नौद्रंग है. नौद्रंग में क्या होता है कि this is a all male study center, skill center, है ना, skill learning center. तो इसके लिए देखो ये जो लगाया हुआ ना, कितना logically देखो लगाया हुआ ये चीज कि the females जो कि वो पहनती हैं, मेखला पहनती हैं, तो उनको इसमें क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा. So females will not go inside. So that's the barrier. Only boys will be there. So much of logic in our traditions. Huh? So much of logic, so much of organization in this. I am also equally happy. Sir, thank you so much. Sir. It is like I came yesterday. okay, sir. Today evening I will be leaving. Okay, sir. Nice, sir. Nice to see you here, sir. Because when people like you come, This is my pleasure. like, no, really, sir. Really grateful to meet you. And thanks to him, sir. That he knocked, otherwise I would have missed you. Right. Okay. Right. Thank you, sir. Take care. Okay. Thank you. Okay, fine. All the best. Thank you. अपनी मुकदम Same here. Thank you so much. Take care. Thank you. Sir, madam, photo. Hello, sir. He looks like a Chinese martial artist. Because of his uniform. What's your name, sir? ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए. That's it. Yes. Thank you. You look like Bruce Lee. साधु को मत है ना, आप लोग रहते हैं मिस्टर सब आप लोग काफी होते हैं. Which I am looking Anand sir. I'm very happy. I am also, we all are excited, like whenever we meet now, like we have friends from here only. Okay. And like you seeing me, thank you so much for stopping and meeting. Thank you. So for me, it's also great to have you. Thank you, sir. Yes. Thank you so much, sir. God bless. While visiting the places, he was recognized by all his fans and well-wishers. Lot of his fans have also taken photos, him denoting his fame and एक ग्रुप में ले लेते हैं. हाँ, ग्रुप में आइए ना, आइए सब आइए ना. You have any connection here? I'm also From there. Thank you. Thank you. Thanks, sir. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you and all. Thanks, sir. I'm so lucky now. सर को कल ही मालूम चल गया था, आप आ रहे हैं यहाँ पे. Thank you, sir. Thank you, ma'am. इधर मोबाइल साहब, ये बेला कुछ स्वाय नहीं.
Mana ada sir? Very lucky we are. Sir, I'm lucky, sir. Thank you. लेके आओ Local guys. बीच में अभी आगे से आई थिंक Speaking to this correspondent, Mishra said that he was much excited to visit Dima Hasao district since it's the only district with a hill station town. He also said that he have enjoyed the hills road and mesmerized with the weather. जी हाँ, आज दिमा हसाओ में, जो कि दिमा हसाओ अभी टूरिज्म की ओर आगे बढ़ रहा है, और अभी स्पेशली दिमा हसाओ में एक ऑफिसर आया है जो घूमने के लिए दिमा हसाओ को या हाफलोंग को घूमने के लिए ऐसा एक ऑफिसर आया है जो ऑफिसर का कोई आइडेंटिटी बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनका नाम लेने से उनका पहचान आ जाता है। जी हाँ, हमारे साथ दिमा हसाओ में एसपी आनंद मिश्रा जी आए हैं और आज जो ग्याकाल से वो टूर कर रहे हैं दिमा हसाओ, काफ़ी जगह दिमा हसाओ आए, कल दिमा हसाओ स्टे करा, आज भी स्टे करा। आज दिमा हसाओ सवेरे से हाफलोंग की सवेरे विभिन्न जगह उन्होंने घुमा है। आइए उनसे जानते हैं जो दिमा हसाओ व हाफलोंग उन्होंने जो घुमा है कैसा लगा, और दिमा हसाओ को लेकर उनका दिल में बा उनको क्या मैसेज देना चाहिए, व दिमा हसाओ को लेकर उनके दिल में क्या भावना है, आइए उनसे जानते हैं। जी सर, जैसे कि हम लोग देखा है कि आप कल ही दिमा हसाओ आए हैं और दिमा हसाओ ऑन द वे बाई रोड आप बाइकिंग करके आए हैं, तो दिमा हसाओ घूम कर दिमा हसाओ आज जैसे घूमा, दिमा हसाओ घूम कर आपको कैसा फील हो और कहाँ गया, और दिमा हसाओ को लेकर आपको क्या भावना है? नहीं, दिमा हसाओ देखिए एक एहसास है। दिमा हसाओ एक जगह नहीं है मेरे लिए। दिमा हसाओ मेरे लिए दिमाग में बहुत सालों से चल रहा था, और पिछले कुछ दिनों में तो बहुत ये होता ना अंदर से होता, जैसे प्यास लगता है, पानी पीने का मन करता है, जैसे दिमा हसाओ जाने का मन। तो मैं जब नौगांव में एसपी था तब से मैं सोच रहा था कि मुझे तवांग जाना है और दिमा हसाओ मतलब इधर हाफलोंग तक आना है, लेकिन तवांग तो थोड़ा सा जा पाया, लेकिन इधर मिस हो गया मेरे से, तो इसको मिस को पूरा करना ज़रूरी था। तो हम लोग कल यहाँ पे पहुँचे और इसके बाद आने के बाद हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन एनफील्ड राइडर्स का पूरा टीम है, साथ में हम लोग मिलके यहाँ पे हम लोगों को बहुत मज़ा आया कल से, है ना। तो कल से हम घूम रहे हैं यहाँ पे, और पूरा जगह ये लोग जिस तरह से दिखा रहे हैं ना, तो ये जगह को सिर्फ दिखा नहीं रहे मुझे, वो महसूस करा रहे, वो फीलिंग आ रहा है अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जगह का देखिए जो ब्यूटी है वो तो है, यहाँ के लोग जो है ना, दे आर चेरी ऑन द केक। हम इतना पॉजिटिव लोग जहाँ जा रहे हैं मुस्कुरा के आपको ग्रीट करते हैं, व्हेन यू गो अराउंड यू फाइंड देम वेलकमिंग। तो ये जो एक इनोसेंस है जो छलक के आता है ना, तो आई एम श्योर कि इस देश का कोई भी आदमी जब इस देश के इस कोना में आएगा, उसको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है, और दे विल फील एट होम, नंबर वन। एंड दूसरा, जो अगर किसी को कहते हैं ना, एक सुबह में किसी को कह रहा था कि बहुत पहले एक मुग़ल राजा ने कश्मीर के लिए कहा था ये बात कि गर फिरदौस बरुई ज़मीनस्त हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। इसका मतलब अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। यही मेरा महसूस हुआ कल से आके। टाउन के अंदर जैसे घुसा, ऐसा लगा कि इट इज़ इवन सो वेल मेंटेन्ड, इतना साफ सुथरा, इतना वेल अरेंज्ड, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। और रात को लोग भी कम थे, इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पहुंच गया मैं सही जगह पे, जहाँ पे जहाँ पे जाना चाह रहा था। और दिन में जब हम सब घूम रहे आज जहाँ पे जा रहे थे, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। इट्स अ प्लेस ऑफ कल्चर, इट इज़ अ प्लेस ऑफ म्यूज़िक, इट इज़ अ प्लेस ऑफ लव। तो दिमा हसाओ हाफलोंग इज़ जस्ट अमेजिंग। कोई अगर आसाम आता है और इस जगह पर नहीं आता तो उसने आसाम नहीं देखा है। सर, जैसे कि हमारे दिमा हसाओ को इसको एक मिनी नोटिस भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ आपका ट्राइब ही सिर्फ सब है और नॉन ट्राइबल है, उसको लेके आप, जैसे कि आप एथनिक भी गए थे, एथनिक विलेज भी गए, तो उसको लेके आपको कैसा फीलिंग हुआ? बिल्कुल, आज एथनिक जब हम विलेज गए तो वहाँ पे 14 एथनिक कम्युनिटीज़ का हमने वहाँ पे हट्स देखा और लोग देखा, तो बिलीव मी, मैं सरप्राइज था। हाँ, कि हमारे, आपने ठीक कहा कि मिनी नॉर्थ ईस्ट का जो बात बोला आपने, मुझे वो महसूस हुआ कि देखिए इतने सारे लोग इतने प्रेम से
एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे का ना पूरा कम कर रहे हैं। मैं जैसे मेरे में थोड़ा कम हो गया तो आपने पूरा कर दिया, आप में थोड़ा कम हो गया इन्होंने पूरा कर दिया। तो ये जो एक साथ मिलके एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करके रह रहे हैं ना, तो दिस इज समथिंग टू बी लर्नड बाय द होल कंट्री। पूरे देश को सीखने की जरूरत है कि कैसे दिमा हसाओ में ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। यहाँ पे मैंने देखा जो बात करके भाई लोगों सब साथ में हैं, तो इनसे जब मैंने इंटरेक्ट किया, बात किया ना, वो मतलब इतना अपनापन, मुझे लग रहा है मैं इधर ही का हूँ। ऐसा 2-4 दिन रहूँगा, बिलीव मी, आई स्टार्ट स्पीकिंग द लैंग्वेज, आई स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग पीपल डू। मतलब इतना घर जैसा महसूस हुआ मुझे। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। एंड जो लोग यहाँ दिमा हसाओ में रहते हैं, जो हाफलोंग में बताऊँ, यू आर द चोजन वंस ना। भगवान आप पे बहुत मेहरबान है कि आपको ऐसी जगह पर रहने का मौका मिला। सो यू आर ब्लेस्ड। सर जैसे दिमा हसाओ को लेकर व हाफलोंग को लेकर आप टूरिस्ट की ओर से आपको क्या क्या मैसेज आएगा टूरिज्म को लेकर? मैं बताऊँगा दिमा हसाओ हाफलोंग वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है। नंबर 1 जो टूरिज्म पॉइंट से कोई अगर देखता है आसाम आने में थोड़ा सा, दिस वन ऑफ सेफेस्ट प्लेस। आप आइए, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। वो पहले आपको मांगने से पहले हेल्प करने को रेडी हैं। तो दिस विल बी अ प्लेस, ये एक जो महसूस होगा दिमा हसाओ के, जो खूबसूरती, जो पहाड़, जो वादियाँ, जो वैलीज, यहाँ का जो खूबसूरती है वो तो डेफिनेटली आपके जहन में उतर जाएगा। प्लस यहाँ पे जैसे पहाड़ों के बीच से रेल चली जा रही है, ये एक अलग नॉस्टैल्जिक फील है। ये जो सीनिक जो चीज़ है ना, वो आप भुला नहीं पाएंगे। और दूसरा जो लोगों का मोहब्बत है यहाँ पे, जो लोग जो वेलकमिंग है ना इतना, तो ये जो एक आप महसूस, जो एहसास लेके वापस जाएंगे, बार बार दिमा हसाओ आपको वापस लाएगा, बार बार आपको हाफलोंग आना पड़ेगा। आज मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे आज कोई कहता है कि आप थोड़े दिन बाद के कहीं किसी को लेके या कुछ दोस्त बन के कहाँ जाना है, तो मुझे हाफलोंग ही आना है। When asked on how he manages professional and personal life, he replied that one should take time to fulfill personal desires in order to be successful in professions. सर और एक चीज़ है, जैसे कि दिमा हसाओ आप घूमने आए हो, काफ़ी जगह घूमते हैं आप एज ए एसपी हिसाब से आपका काफ़ी काम भी होता है। एज ए प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को आप कैसे आप हैंडल करते हैं और उसको मतलब कैसे आप देखते हैं? राइट, देखिए किसी को भी मैं कहूँगा कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ प्रोफेशन के लिए पैदा नहीं होते हैं, है ना। आप जो पैदा हुए हैं तो खाली नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, क्या ये नौकरी करिए मर जाइए। आप पर्सनली अपनी ज़िंदगी को कैसे महसूस करते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि जो लाइवलीहुड है वो लाइफ जीने का एक माध्यम है। आप लाइवलीहुड के लिए लाइफ नहीं है, लाइफ के लिए लाइवलीहुड है। तो ये बैलेंस रखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल लाइफ में आप वेल इक्विप्ड है, आप सेटिस्फाइड है, आप मोटिवेटेड है, उसका रूप आपको प्रोफेशनल लाइफ में दिखेगा। अगर आप खाली काम करेंगे, एकदम फ्रस्ट्रेट होकर हार्ट स्ट्रोक होकर मर जाएगा आदमी, है ना। इसीलिए दोनों ज़रूरी है कि एक बैलेंस रखा जाए। प्लस देखिए हमारा जो पब्लिक सर्विस है, अगर हम जैसे सबसे मिलते हैं, कम्युनिटी में मिलते हैं ना, तब हमें ग्राउंड से ना वो एहसास पता चलता है कि हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम पब्लिक सर्विस के नाम पर ऐसे टाइट होकर बैठ जाए, हम आपको मिलने ना दें, हम आपसे ना मिले, तो हमको पता कैसे चलेगा कि मुझे काम क्या करना है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी है। और समहाउ आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू एवरीवन कि जो मेरा प्रोफेशन और पैशन पर्सनल लेवल पे एक है। मुझे जो मेरा काम है वही मुझे करना भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मिला हुआ है कि आई बिलीव मेरा बैलेंस बहुत इजीली हो जाता है। एंड सबसे अच्छी बात होती है इसमें, मैं आपको बताऊं, ये देखिए कहीं भी जाने से, अभी मैं जहाँ से भी हूँ, जो भी हूँ, अब दिमा हसाओ हाफलोंग में आता तो मैं सोचता कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। देखिए कितने दोस्त हैं मेरे पास, है ना। तो ये होता है जब आप अपना पैशन को भी जीते हैं, क्योंकि इट इज़ लाइक अ बॉन्डिंग। अभी ये लोग भाई लोग जब मेरे पास कभी आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा इनको होस्ट करने में, मैं आए तो ऐसे तो दोस्ती बनती है ना। तो इसीलिए प्रोफेशन और पैशन हम मिला के ही रखेंगे, तभी ज़िंदगी कंप्लीट होगा, नहीं तो हाफ सर्कल होगा। प्रोफेशन इज हाफ सर्कल, व्हेन योर पैशन और या पर्सनल इंटरेस्ट होता है, देन इट्स अ फुल सर्कल। तो इसीलिए आई बिलीव बोथ आर इंपॉर्टेंट। सर जैसे कि अपकमिंग अभी जो यूथ है वो आपका काफ़ी फ़ैन है, मतलब आप बोल सकते हैं जो जितना भी यूथ है वो आपको काफ़ी मतलब कोई आपको अपना गुरु भी मानता है, या कोई आपको मतलब आपको देखने वाला नज़रिया अलग होता है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए रहेगा पहले तो थैंक यू, हाँ, कि आपको इस लायक आपने इतना मोहब्बत दिया। और मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से जिए, इतना आप अपने को स्टैब्लिश करिए, और फिर मुझसे एक बार मिलकर मुझे बताइए ये बात, है ना, कि मैंने आपको पसंद किया था एंड समवेयर आप मेरे लिए पॉजिटिव इंस्पिरेशन थे। बिलीव मी, मुझे लगेगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो आप अगर थोड़ा सा भी मुझे पसंद करते हैं तो आप हर वो पॉजिटिव काम करिए और अपनी ज़िंदगी का जो भी लक्ष्य है उसको ज़रूर प्राप्त करिए, और करने के बाद एक बार मुझसे मिलिए ज़रूर, मुझसे मिलकर बताइए, सो दैट मुझे भी लगे कि मेरा जीवन थोड़ा सा ना काम में आया किसी के। तो लाइक ऑलवेज बी पॉजिटिव, यही मैं कहूँगा कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपके आसपास अगर निगेटिविटी आती भी है तो उसको इग्नोर करिए, है ना, क्योंकि ज़िंदगी ये बार बार नहीं मिलेगा, और ज़िंदगी कितना लंबा है ये भी नहीं पता। तो लिव इट फुल साइज। है कहाँ
With camera person Bikram Chakraborty reporting by Pankaj Timung, Borail News.